हाय एवरीवन, आई एम ईशान। स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बहुत सारे आईआईटीज में भी जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बट वो बच्चे जो होते हैं वो एंड वी डिसाइडेड दैट लेट्स स्टार्ट लाइक अ मार्केटिंग कंपनी। दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन। एंड उस इंटरव्यू से पहले उन्होंने हम सबके साथ बैठ के खाना खाया। उसके बाद फिर सबके साथ बैठ करके बातें करी कि अच्छा हमारी कंपनी का। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल होने लगी है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं बच्चों से बात करती हूँ उनके करियर को लेके, पेरेंट्स से पूछती हूँ कि वो अपने बच्चों के अंदर कौन सी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि इस एआई के युग में आने वाले 5, 10, 15 सालों में बच्चों के पास बहुत अच्छी सिक्योर करियर्स हों, वो अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सेव कर सकें। तो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आते हैं, इवन बच्चों को भी क्लैरिटी नहीं है। इन सभी का जवाब देने के लिए मैंने आमंत्रित किया है ईशान शर्मा को। ईशान शर्मा के 1.8 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। मार्केट अप के को फाउंडर हैं। आईआईटी जोधपुर जैसे कॉलेजेस में वो लेक्चर्स लेते हैं। गूगल, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज के साथ काम करते हैं। सो इस डिजिटल वर्ल्ड में हमें कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर वो कंटेंट क्रिएशन करते हैं। I've been following him from past 2 3 years, and I requested him to join us on Stories Matter so that my viewers can also get benefited from his wisdom, from his work. Let's join hands to welcome Ishan Sharma on Stories Matter. वेलकम ईशान टू स्टोरीज मैटर। मैंने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं। आपको मैं बहुत एक्चुअली 2 3 साल से फॉलो कर रही हूँ, एंड आई हैव बीन योर ह्यूज फैन एज एन अडल्ट ऑल्सो। एंड मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लासेस 8 to 12 और उनके पेरेंट्स, दे ऑल्सो फॉलो यू। दे कॉल यू ईशान भैया। तो ईशान, आपके भी वो एज ग्रुप रहा होगा जहाँ पे आप भी वो 8th 9th क्लासेस में यू वर लिटिल कंफ्यूज एंड यू वर नॉट वेरी क्लियर। मतलब आपकी बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ से पहले, बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टू एन ऑथर टू दिस, उससे पहले की जर्नी के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताइए। Thank you so much, Indu ma'am, for the warm welcome. Hi everyone, I am Ishan. I am a 23-year-old founder and I make videos on YouTube about personal development and business. I started when I was in first year of college with my content. I wanted to help people make a living doing what they love, and I wanted to also improve my communication skills along the way. So that's basically 2020 January when I started. Was just focusing on documenting my life, talking about how I, for example, got an internship, how I got like a freelance client, how am I learning different skills, and then would just talk about that on YouTube and make videos around that. And that helped a lot of people get clarity about how can they achieve certain things in their own career, in their own life, and reduce the confusions that they might have. So that's basically how I got started with my content journey. 3 years ago, my co-founder, who's my roommate back then, came to me and we decided that let's start like a marketing company in which we will be servicing a lot of businesses and we'll be helping them with organic content. And so our goal was to help companies build organic traction channels and not waste money in ads. We've all seen lots of companies. You will be watching this video on YouTube, so you'll see plenty of ads on YouTube. But I think a lot of value can be derived by just creating organic content so that you don't have to buy or rent someone's distribution yourself. So that's basically what we've been doing for the last 3 years. I am sitting right now in the office of the company that I started 3 years ago. It's a 25 people team. And it's surreal to see people sitting in front of me and working every day on their workstation. So it's all very new and I'm learning every day. Congratulations for all the success that you've already achieved, and wish you all the best. तो मैं आपको थोड़ा वापस बैक उसमें ले चलती हूँ, आपके कॉलेज ईयर्स में, डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स गोवा, एंड आई थिंक यू वर इन थर्ड ईयर। और मेरे को लगता है कि नॉर्मल से एवरेज बच्चे का ये ड्रीम होता है बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, ये सब में पहुंचना। एंड यहाँ पे आपने डिसाइड किया अपना करियर शिफ्ट करना एंड टू ड्रॉप आउट, टू लीव दैट कॉलेज। वहां पे मुझे थोड़ा सा आपके पेरेंट्स का क्या रोल था,
और आपके इमीडिएट फैमिली का, एंड हाउ डिड यू डिसाइड टेक सच अ ह्यूज स्टेप? ये कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मुझे पेरेंट्स का रोल भी जानना है, बिकॉज ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए भी है, कि हाँ वहां जी। पे पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं करियर बिल्कुल। जर्नी में। बिल्कुल, आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी पूरे पिछले 5 साल में। दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ सो फार। आई थिंक जब मैं स्टार्टिंग में जनवरी 2020 से लेकर के जब मैंने ड्रॉप आउट किया, करीब 2 साल के पीरियड में मैं जब वीडियोस बना रहा था, जब नहीं, मैं जब यहाँ रोकूंगी मैं आपको, यहाँ जब आप डिसीजन ले रहे थे और उन आपने उनको डिस्क्लोज किया और उनको बताया कि आई वांट टू डू दिस, तब उनका रिएक्शन क्या था? आई थिंक उस टाइम पर मैं बहुत टाइम से अपना कंटेंट और अपनी कंपनी चला रहा था। तो उन्होंने देखा था मुझको कि मैं कैसे सब कुछ काम खुद से सीख रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ। तो दे वर वेरी प्राउड ऑफ दैट, दे वर वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो उनको एक ऐसा ट्रस्ट आ गया था कि ये लड़का कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में अच्छा। सो व्हेन दैट हैपेंड, व्हेन आई वेंट बैक टू कॉलेज, 21 डेज में वहाँ पे रहा, एंड आई रियलाइज्ड कि कॉलेज मेरे लिए नहीं है अभी सही डिसीजन। आई शुड पुट दैट टाइम एंड एनर्जी इनटू माय ओन कंपनी एंड माय ओन कंटेंट, एंड दैट्स व्हाई I told them that I don't want to continue with college. एंड स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो बोल रहे थे कि कर लो, 1 साल ही बचा हुआ है, या फिर इग्नू से कर लो, या फिर किसी और तरीके से कंप्लीट कर लो डिग्री। बट मैंने उन्हें वही बोला कि मेरे को नहीं लग रहा कि मैं अपने कॉलेज में रह करके ठीक से ग्रो कर पाऊंगा खुद को, अपनी कंपनी को, मेरे कंटेंट को। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंटेंट पे फोकस करना है और कॉलेज छोड़ना है। तो ऑब्वियसली दे वर अ बिट स्केप्टिकल स्टार्टिंग में, बट बिकॉज उन्होंने पिछले 2 साल में मुझे देखा है काम करते हुए विद डिसिप्लिन, विद कंसिस्टेंसी, दे हैड दैट कन्विक्शन कि कुछ ना कुछ कर लेगा ये। तो दैट इज व्हेन 27 मार्च को 2022 में मेरे फादर, माय डैड केम टू गोवा, टू माय कैंपस बिट्स गोवा, एंड he helped me pack all of my bags. I had like shooting equipment with me, so he helped me pack all of that, and we took a bus and we came to Pune, and that's where we were living. And that was 27th of March, and 1st of April we were in Bangalore, 2022. And ever since I've been living in Bangalore. My parents shifted with me. They've been very supportive at every step of my journey, and they've been very worried as well that I'm working so hard. So they're just helping me out with all the health problems that I might face. So उस तरह की सारी चीजें they've been really supportive with. यहाँ पे मैं आपके दो तीन पॉइंट्स सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए हाईलाइट करना चाहूंगी कि ट्रस्ट, पहले उन्होंने ये करके दिखा दिया, ऑलरेडी ही वाज डूइंग ऑल ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि ये हमारे बच्चे में ये गुण है, ये हुनर है, और इसके बेस पे वो अपना करियर बना लेगा। सो वो हवा में बातें नहीं कर रहा था, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुका था कि उसमें ये है एबिलिटी एंड वो कर लेगा। दिस इज हाउ पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना ज्यादा इजी हो गया। आई थिंक दे ऑलरेडी न्यू दैट यू हैव इट इन यू। सो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, जब बच्चे अनकंडीशनल पेरेंट्स से सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, आई थिंक दैट्स वेयर दे गो रॉन्ग। तो पहले आपको अपने आप कुछ करके दिखाना है, फिर पेरेंट्स से सपोर्ट चाहिए। सो इट इज बोथ वेज, है ना? बहुत सही अच्छा बात है। क्वेश्चन था, आंसर था सॉरी आपका, कि यहाँ पे दोनों पार्टीज को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब आपने ये कहा कि मुझे थर्ड ईयर के बाद ये लगने लग गया था कि कॉलेज एजुकेशन मुझे कोई खास हेल्प नहीं कर रही, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि व्हेन इट कम्स टू रेटिंग स्किल्स वर्सेस डिग्री, तो आप किसको ज्यादा नंबर देंगे? कि हमारे आज की डेट में जब हमारे जो बच्चे हैं ना, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग विजन है ना, वो जॉबलेस, अगर डिग्रीज ले भी लेते हैं कुछ ऐसी कॉलेजेस में जहाँ पे उनको 12-10 हजार 12 हजार की जॉब मिल रही है, इंजीनियरिंग ऐसी, those colleges from where they pass out, and they have no clear vision. So वहां पे आप उनके लिए क्या गाइडेंस, एक लाइन देंगे कि स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट? आई ये थिंक दोनों साथ साथ इंपॉर्टेंट। कुछ करियर होते हैं जिसके अंदर आप चाहेंगे कि आपके पास डिग्री हो तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक लॉयर हैं, तो अब मैं किसी ऐसे लॉयर के पास नहीं जाऊंगा जिसके पास वो डिग्री नहीं हो, जिसने काम नहीं किया हो अच्छे से, या किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा जिसके पास डिग्री नहीं होगी। बट ज्यादातर आजकल आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप टेक फील्ड में हैं, अगर आप राइटिंग फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो ये सारी जगहों पे आपकी जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, आपके जो स्किल्स हैं, आप जो चीजें कर सकते हैं, वो कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन आपकी जो डिग्री होती है। ज्यादातर टाइम आप जब किसी कॉलेज में जाते हो तो डिग्री तो एक बात है, बट आपको ज्यादातर जो नेटवर्क मिलता है, जो लोग मिलते हैं आपके आसपास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
बट मोस्ट जो आपने बताया अभी, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में चले जाते हैं जो अच्छे नहीं होते, जहाँ पे अच्छे लोग नहीं होते, तो अच्छी संगत नहीं मिलती है उनको, बिकॉज ऑफ विच दे एंड अप नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कंफ्यूज रहते हैं, तो दे डू वट एवर दे सी एवरीवन डूइंग. दैट इज वाई आई स्टार्टेड माई चैनल, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपके पास अवेयरनेस होगी तो आप बेटर चॉइसेस बना सकते हो अपने लिए. सो चैनल के थ्रू मैं ज्यादा से ज्यादा करियर्स को कवर करता हूँ. एंड आई टेल देम कि अच्छा, अगर आपको लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सो दैट यू नाउ नो कि अच्छा ये चीज एग्जिस्ट करती है, मैं इसमें शुरू कर सकता हूँ. ऐसे ये चार, एक दो तीन चीजें करके आई कैन गेट स्टार्टेड विद दिस फील्ड. एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि अच्छा मुझे ये करना है. एंड आई थिंक that is the best thing that I can do for people my age, is to really help them figure out what they want to do with their life. तो I think skills का बहुत important रोल है. मैं बहुत सारे IITs में भी जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बट वो बच्चे जो होते हैं वो सॉर्ट ऑफ ना प्लेसमेंट्स के लिए मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं अपना अपना एनर्जी और टाइम. उसमें क्या होता है कि आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप स्किल सीख सकते हैं जो आपको जेन्युइनली कहीं पे जॉब या फिर किसी के साथ फ्रीलांस में काम करने में हेल्प कर सकता है, कंसल्टिंग में हेल्प कर सकता है, या फिर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि अच्छा वो जो इंटरव्यू होगा उसे कैसे क्रैक करूं, राइट. जो आजकल किताबें भी आती हैं, जैसे एक किताब है बहुत फेमस, उसका नाम है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, जो सब लोग उस किताब को पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं. एंड उससे क्या होता है, आप अच्छे वो क्रैक करने वाले बन जाओगे इंटरव्यू को, बट आपके पास सच में वो स्किल नहीं होगी कि आप खुद से कोई चीज बना सको, खुद से कोई कोड कर सको. तो आई थिंक वो एक मिस, वो गैप है जो अब मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ विद माय कंटेंट. वेरी गुड। आई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है जो आपके फॉलोअर्स हैं दे विल बी मोर ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे देख रहे हैं। पर पेरेंट्स, अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि आज के न्यू एज करियर्स या 5 साल बाद या 10 साल बाद कौन से करियर्स हैं जो एक्चुअली बूम करेंगे, लाइक नाउ जो अभी चल रहे हैं, वेब डिजाइनिंग और इवन यूट्यूब एडिटिंग या एनिमेशंस, तो आई थिंक 2020, अगर 2000 में मुझसे कोई पूछता तो शायद मुझे भी नहीं पता होता एज अ पेरेंट। सो ये पेरेंट्स के अवेयरनेस होनी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आप एक वीडियो उनके लिए भी जरूर बनाइए। मेरा फोकस पेरेंट्स के ऊपर इसलिए ज्यादा रहता है बिकॉज व्हेन आई गो फॉर सेशंस, तो मुझे पेरेंट्स को लगता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, उनको जो वो रटे रटाए 4-5 चीजें हैं जहां उनको लगता है जॉब सिक्योरिटी है। सो आपके हिसाब से ये जो कंटेंट क्रिएशन है या बीइंग अ यूट्यूबर, ये जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से इट इज ऑल अप टू यू। अगर आप रोज वीडियो डाल रहे हो तो आप फेमस बढ़ रहे हो, अगर आप नहीं डालोगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, देर इज नो हार्ड वर्क, यू आर नॉट एडिंग न्यू वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, तो वो नहीं चल सकता। सो इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन स्किल एंड योर हार्ड वर्क। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि क्यों पेरेंट्स इन करियर्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि उनको अपने बच्चे की काबिलियत पे और आगे क्या लेके जाएगा और एक सॉलिड इनकम आ रही है कि नहीं, इन सारे चीजों पे एप्रीहेंशन रहती है ना। सही बात है. तो आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि ये जो आप बना रहे हो अपना यूट्यूब, सो मैं जब इवन अभी आपकी लेटेस्ट वीडियोस भी मैंने देखी, तो उसमें यू सेड कि चाहे मेरे को कोई एक देखता था या दो देखें या 10,000 देखें या 10 लाख देखें, सो आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट। सो दीज थिंग्स रिक्वायर कंसिस्टेंसी। वेर एज अगर आपने एक गवर्नमेंट जॉब ले ली, आपकी परफॉर्मेंस में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपकी प्रमोशन नहीं हुई या यू आर नॉट लाइक बाय योर सीनियर्स, पर तनख्वाह आती रहेगी। तो दैट डिफरेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू दैट। आई थिंक दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट थिंग इन पेरेंट्स माइंड, कि जो चला आ रहा है वो सदियों से, न्यू वर्सेस ओल्ड, उसके लिए हमें कैसे कन्विंस कर सकते हैं आप अपने आई थिंक जैसे बच्चों को और पेरेंट्स को। आई थिंक पेरेंट्स के लिए, मतलब मैं जो बताता हूँ चैनल पे, जो बातें करता हूँ, सब इम्पोर्टेंट है, बट पेरेंट्स को ये समझना होगा कि आपका जो बच्चा है वो बहुत अवेयर है आज के सोशल मीडिया की एज में. उन्हें पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं. तो आप थोड़ा एक ओपन माइंडेड अगर व्यू लेके चलेंगे उनके साथ, और कोई चीज उन पे थोपेंगे नहीं कि अच्छा नहीं मैंने तो यही देखा है पूरे जगह में, राइट, तो आप भी यही करो. ऐसा ना करके अगर आप उनके साथ बैठ के बात करें कि ये बेटा आपको अच्छा क्या लगता है, आप बताओ,
राइट। एंड उससे फिर समझेंगे कि अच्छा अगर आपको डिजाइन पसंद है तो डिजाइन में आप क्या करके कैसे एक अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो डिजाइन में। तो वो एक और एक अंडरस्टैंडिंग और डिजाइन में मेच्योरिटी जा सकते अगर हैं। आप बच्चे को देंगे, जिससे पीपल माई एज, तो उनको भी थोड़ा इंडिपेंडेंट फील होगा कि अच्छा मेरी बात सुनी जा रही है। मेरे से बहुत सारे दोस्त थे जो सेकेंड थर्ड ईयर में हैं, 19-20 साल के, जो लेट्स से कुछ डिजाइन का काम कर रहे थे या फिर ऑडियो का काम कर रहे थे, जो डीजे में पार्टी होती है, डीजे का जो म्यूजिक होता है वो ड्रॉप वाला म्यूजिक जो होता है वो बना रहा था एक दोस्त। बट आज की डेट में मैं उससे मिलता हूँ, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के किसी कंपनी में काम कर रहा है। मैं उससे मिला, मैंने बोला भाई क्या हुआ, लाइक आप तो 2-3 साल पहले वो कर रहे थे, आपको इतना पसंद था वो। तो बोला पापा नहीं मानेंगे, पापा को नहीं, उन्होंने अलाउ नहीं किया। एंड उन्होंने अलाउ क्यों नहीं किया कि वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे वो वाली बात कि हमारा बेटा ऑडियो या फिर डिस्क जॉकी जो डीजे होता है वो वाला काम कर कर सकता है। तो वो एक, अब वो लड़का बस काम कर रहा है क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, शादी, घर, बच्चे, सब कुछ जो नॉर्मल लाइफ होती है, तो उसके ऊपर बस वो थोप दिया गया है कि तुम अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो आई थिंक उसके अलावा भी बहुत कुछ है, अगर पेरेंट्स सुनेंगे और पेशेंस रख करके बात को समझेंगे और फिर फिगर आउट करेंगे कि कैसे इस इंटरेस्ट से करियर बन सकता है, तो दैट विल बी वेरी गुड। और आजकल बेस्ट चीज ये हो गई है कि जो लोग होते हैं ना, जो ड्राइंग करते हैं, इलस्ट्रेशन बनाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि पापा को जाके मुझको इलस्ट्रेशन बनाना है, तो कई बहुत सारे लोग फैमिली में वो बोलेंगे कि ये सब क्या कर रहे हो आप, ऐसे आपने बोला कि इंजीनियर बनो या फिर डॉक्टर बनो या सब चीजें करो। बट आजकल मैं ऐसे इलस्ट्रेशन वालों लोगों से मिलता हूँ जिनको लाख लाख रुपए मिलते हैं जस्ट टू मेक वन इलस्ट्रेशन। बट ये सारी चीजें पता नहीं होती है लोगों को, तो इसलिए सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि बचपन से ही हमें अगर गाइडेंस हो पेरेंट्स को और वो ओपन माइंडसेट के साथ चलें कि ये चीजें, ये स्किल्स बच्चों को अब हम बचपन से ही सिखाएं तो दैट दोज विल हेल्प देम ग्रो बेटर इन देयर करियर। सो व्हाट आर दोज स्किल्स which are must learn for every child, to name आई a few, थिंक like मैं तो भी पेरेंट बना नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है ये सब के बारे में। बट अगर अगर कुछ होगा इम्पोर्टेंट स्किल जो आपको सीखना चाहिए, इट इज हाउ टू लर्न समथिंग, राइट। आप मतलब इट्स नॉट कोड, इट्स नॉट डिजाइन, इट्स no नॉट no कंटेंट not for क्रिएशन। parent, I am talking about child only मैं कि चाइल्ड की बच्चे बात के कर लिए रहा हूँ। कौन सी स्किल। अगर एक हाँ। बच्चा शुरू कर रहा है, अपना स्कूल जा रहा है, आगे ग्रो करना चाहता है, तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है हाउ टू लर्न एनीथिंग, कोई चीज कैसे सीखें आप। एंड हमारी हम्म। एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमको लगता है कि रट्टे मार के या फिर कोई चीज मेमोराइज करके सब कुछ आप उल्टी कर देंगे पेपर पे तो आपको वो चीज हो जाएगी और आप पास हो जाएंगे। बट आप एजुकेट नहीं हो रहे हैं उससे, राइट। आप बस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो उस पेपर के लिए, उस इंटरव्यू के लिए, जैसे मैंने बताया पहले। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कोई भी चीज को आप कैसे बहुत आसानी से सीख सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। लर्निंग हाउ टू लर्न इज द मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू कैन लर्न इन 2025। एंड ये इसके अलावा आपको सीखना होगा कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो इन इन न्यू इन द न्यू वर्ल्ड। जैसे जब चैट जीपीटी आया तो फिर उसके बाद बहुत सारे कंटेंट राइटिंग वाले जो जॉब्स थे वो इरेलीवेंट हो गए, क्योंकि अब कई बार आप बस सिंपली टाइप करके सारा कंटेंट निकाल सकते हैं चैट जीपीटी से। अब अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड करेंगे खुद को, कैसे, ठीक है, लेट्स से कि मैं चैट जीपीटी को यूज करके कैसे कोई बेटर कंटेंट राइटिंग सर्विस ऑफर कर सकता हूँ, राइट, जिसका जो रेलेवेंट होगी। तो लोग कई बार क्या करते हैं, जब वो अपने 4 साल का कॉलेज जो एजुकेशन करते हैं तो वो बस उतना ही पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो कभी लेवल अप करते ही नहीं है अपनी लाइफ में। या फिर कोई कोर्स कर लेते हैं 2 साल का, 1 साल का, बाद में एमबीए कर लेते हैं, उस वक्त कुछ कुछ सीखते ही नहीं है। एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी टाइम के साथ जो आप स्किल सीख रहे हो वो इरेलीवेंट होती जाएगी विद टेक्नोलॉजी, विद एआई राइट नाउ। तो आपको कॉन्स्टेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नए टूल्स आ रहे हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबल है। एंड सेकेंडली आपको सीखना होगा कि आप कैसे इन टूल्स को यूज करके अपनी सर्विस को बेटर कर सकते हो, अपनी स्किल्स को बेटर कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ये दो चीजें आपको हमेशा सीखनी चाहिए, Yeah, दैट so कभी। basically, the ability to keep learning. So you should always be open to learning new things और new क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। learning के साथ अपने आप को adapt करना
प्लस हाँ जो आपकी, यू ऑल्सो टॉक अ लॉट अबाउट इट, कि जो परमानेंटली चाहिए ही चाहिए इन एनी फील्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस टू रीच आउट टू पीपल। बहुत से बच्चे हैं जो मुझे आके बाद में मिलते हैं जब वर्कशॉप खत्म हो जाती है कि मैम हमसे खड़े होके सवाल नहीं पूछा जाता, कि we are so scared to talk publicly, or even not even asking a question is also an issue with them. So ये जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं, आई थिंक शुरू से अगर हम बच्चों को कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरिंग, लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ ले जाएं, बजाय उनको कि नंबर कितने लेने हैं और ग्रेड्स कैसे लेने हैं, बस पेपर पास करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे लेनी है, सो दैट दैट कैन हेल्प देम। ओके, तो कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब आप इतने बड़े बड़ी गूगल और अमेजोन जैसी कंपनीज के साथ काम करते हैं और आपने कॉलेजेस में भी बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, सो व्हाट हैव यू नोटिस कि ये जो हम गैप की बात कर रहे थे कि रोट लर्निंग और स्किल में, तो जो आज की कंपनीज हैं, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन देयर एम्प्लॉयज, उनको कौन सी स्किल्स पे ज्यादा जॉब मिलने के चांसेस है ऐसी कंपनीज में? सो बच्चों को क्या प्रिपेयर करना चाहिए so that they are ready for such companies? मेरे को लगता है कि जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक वो स्किल ऑलरेडी चेंज हो जाएगी। तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो नहीं नहीं, वो हम चेंज हो एट जाएगा। टेंथ तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं एट्थ आपको टेंथ बता रहा हूँ, ट्वेल्थ अगर कोई को। थर्ड ईयर में भी है कॉलेज में, तो फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट तक भी चीजें चेंज हो जाएंगी। इतना फास्ट सब कुछ चल रहा है आज। तो मतलब मैं अभी सैन फ्रांसिस्को गया था, सिलिकॉन वैली में। मैंने पिछले 4-5 महीने से कई बार जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ। और जिस स्पीड से एआई कोड लिखना सीख चुका है, एआई वीडियो बनाना सीख चुका है, एआई डिजाइन करना सीख चुका है, एआई कंटेंट लिखना सीख चुका है, आपको पता नहीं है। अभी क्योंकि चीजें आई नहीं है इंडिया तक, बट वहां पर वो सब कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं एआई टूल्स के साथ। बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जब ये सारे एआई टूल्स आज की सबसे बड़ी कंपनीज यूज करने लग जाएंगी, तो फिर आपका जो रोल होगा वो कम और कम होता जाएगा। तो फिर तब आपको सीखना होगा कि इन टूल्स को कैसे आप यूज कर सकते हो। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू ऑलवेज बी क्यूरियस अबाउट दीज टूल्स एंड कीप लर्निंग देम। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड futuretools.io। यहाँ पर क्या होता है, वो सारे जो नए और इंटरेस्टिंग टूल्स आ रहे हैं उनको अपडेटेड रखते हैं। वहाँ पे आप जाकर के हर हफ्ते अपना संडे में वैसे आप 1 घंटा निकाल के सारे इंटरेस्टिंग जो नए टूल्स हैं उनको ट्राई करिए, एंड आप देखिए कि आप कौन से इन टूल्स को अपना अपने काम में यूज कर सकते हैं, कैसे आप उससे वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। एंड दैट इज द ओनली वे टू बी रेलिवेंट। बाकी और कोई भी स्किल सेट नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं अभी गया था, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मास्टर्स करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, पीएम वाले रोल्स के लिए। बट पीएम वाला जो रोल है दैट इज ऑल्सो वेरी, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट वेरी वेल डिफाइंड, और इट्स जस्ट गोइंग अवे नाउ। बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि पीएम इज जस्ट लाइक अ मैनेजर, मिडिल मैनेजर जो होता है, जो चीजें मैनेज करता रहता है बट उसे कुछ पता नहीं होता है, राइट। तो दे आर लुकिंग फॉर डेवलपर्स हु कैन डिजाइन। जैसे मैं नोशन करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नोशन सुना होगा। तो मैं उनके फाउंडर से मिला वहां पे जाकर के, तो मैंने उनको उनसे पूछा कि आप किस तरह के लोगों को हायर करते हो, जो मैनेजर्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसे डेवलपर होते हैं जो कोड भी कर सकते हैं, उनको डिजाइन भी समझ आता है। तो उनको मैनेजर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं इन काम में, और उनको सबसे ज्यादा पैसे देते हैं वो। तो आपको इस तरह की चीजें ढूंढनी होंगी, तभी आप रेलेवेंट रह पाएंगे आगे चल के। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे बच्चा 17-18 ईयर्स का होता है, जहां उनको खुद ही पता नहीं होता कि मुझे करियर में करना क्या है, और आपने उस समय बुक भी लिख दी, सो यू बिकेम एन ऑथर वेरी एट अ वेरी यंग एज। हाउ डिड दिस थॉट कम टू योर माइंड ऑन राइटिंग अ बुक ऑन लिंक्डइन सक्सेस, कि वहां कैसे अपॉर्चुनिटीज अवेल करें, एंड देन यू रोट अनदर बुक। सो उस अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी व्हेन आई वाज 18 टर्निंग 19, तो इट वाज लाइक अ गिफ्ट टू माई सेल्फ। किताब का नाम था क्रश इट ऑन लिंक्डइन, एंड द गोल वाज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी एज के हैं, जो अपनी पहली इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, अपनी खुद के पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बारे में बातें और लोगों को बताना चाहते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं कैसे करें। एंड इसी वजह से देर इज एन स्कैम गोइंग ऑन, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के बदले आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, बट आपको उस इंटर्नशिप के लिए पैसे देने पड़ते हैं, राइट। एंड क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोग इस तरह के स्कैम्स में पड़ जाते हैं, और ये कंपनीज का रेवेन्यू ही ऐसे आता है। समझ रहे हैं? तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड माई गोल
विद माय कंटेंट वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस कि अच्छा आप ऐसे कर सकते हैं शुरू। तो लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिससे आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। आपको आपको खुद को पता है, बट जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उसमें उतना जल्दी यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क, राइट। जिससे उसमें बहुत कॉमन सेइंग है कि यू आर जस्ट 7 कनेक्शंस अवे फ्रॉम एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम्म। आज की डेट में मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इलॉन मस्क के डायरेक्टली अंडर काम करते हैं। तो आई एम 1 कनेक्शन अवे फ्रॉम इलॉन मस्क। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो डायरेक्टली सुंदर पिचाई को रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के जो Like कनेक्शंस I आप have बिल्ड reached करोगे, to. हाँ, तो So इस तरह से real आप example is you. I have reached you through your father. So like I knew him. That's how I came to know you are his son. It is all through LinkedIn. एग्जैक्टली So तो that's how तो just one connection away. मैं यही चाह रहा था कि इस तरह की जो सारी बातें हैं वो सब सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंचे। एंड दैट इज व्हाई आई रोट द बुक। बहुत सिंपल सी किताब है, उसमें मैंने 70-80 पेजेस में बताया है कि कैसे आप लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, और कैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर सकते हो खुद के लिए। दैट इज द गोल विद द बुक। एंड आई पब्लिश्ड इट ऑन 13th of July, विच इज माई बर्थडे इन 2020। सो दैट्स द बुक। And your second book is about unicorns. So उसके बारे में भी which was your favorite one and उन सब के बीच में आपको क्या common point दिखा, थोड़ा उसके बारे में भी बताओ. आई थिंक मेरा Your second. मेरी जो दूसरी किताब थी, इट्स कॉल्ड अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट। इसका पूरा मोटिव था कि जैसे 2021 एंड 22 में शार्क टैंक के आने के बाद देयर वाज लाइक अ बिग ऐसा हाइप अराउंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड कैसे कोई यूनिकॉर्न कंपनी बना सकता है। बट देयर वाज अ बिग मिसकंसेप्शन। लोगों को लगता था कि आपको लाइक यू हैव टू बी सम स्पेशल पर्सन विद जीनियस आईक्यू, तब भी आप कोई बड़ी कंपनी बना सकते हो। बट बिकॉज मैं इतने लोगों से मिल चुका था और बिकॉज मेरे जो दोस्त थे जो मेरे को ऑथर बने कुशल, वो भी ऐसे स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करते थे, तो वो जानते थे कि ऐसा नहीं होता है। लाइक ये सब लोग बहुत ही सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं एंड देव जस्ट लर्नड एंड एक्सपेरिमेंटेड एंड ट्राइड एंड observed a pattern, and that is how they built a business. So our goal was to interview such founders and basically publish a book about their journeys. हमने पिछले it was like a 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट था। हम सबके ऑफिसेज में गए, उनके साथ बैठ करके उन फाउंडर्स से बात करी। एंड आई थिंक सबसे बढ़िया जो मुझे लगा पर्सनली, सारे ही बहुत अच्छे थे, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा was एक तो रितेश अग्रवाल फेवरेट का होता इंटरव्यू। है. ओयो ओयो के जो फाउंडर है हितेश अग्रवाल, क्योंकि वो इंटरव्यू हुआ था एक ओयो टाउन हाउस के टॉप फ्लोर पे। एंड उस इंटरव्यू से पहले उन्होंने हम सबके साथ बैठ के खाना खाया। उसके बाद फिर सबके साथ बैठ करके बातें करी कि अच्छा हमारी कंपनी का रेवेन्यू इतना चल रहा है, हमारा मुनाफा इतना हो सकता है अगर आप ये सारी चीजें ठीक से करेंगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि कैसे मतलब ही इज सो यंग एंड इतने सारे लोगों को वो साथ में लेकर एक चल रहे हैं अपने साथ। एंड वो बहुत अच्छा लगा, सब उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे। एंड दैट आई थिंक वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग इंटरव्यू। उनके साथ बैठ करके फिर 1 घंटा बात करी कि उनकी जर्नी कैसी थी, उन्होंने कैसे ग्रो करा पूरा कंपनी एंड कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया बाहर देशों में। लाइक बहुत कम कंपनीज हैं जो इंडिया से स्टार्ट होकर के पूरी दुनिया में जा रही हैं, एंड ओयो इज वन ऑफ देम। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं लास वेगस में था अभी फॉर एन एआई इवेंट, एंड वहां पर जब मैं जा रहा था तो मैंने साइड में एक ओयो का होटल देखा। एंड वो देख करके मुझे बहुत ऐसा प्राउड फील हुआ कि अच्छा ओयो यहाँ पे भी पहुंच गया। सो मैसिव रिस्पेक्ट फॉर रितेश अग्रवाल। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अपनी लाइफ की जो आपकी अपनी अब तक की सक्सेस स्टोरी है, जो मतलब उसमें से कुछ अपने बारे में इंटरेस्टिंग एपिसोड शेयर करोगे, बिकॉज आवर चैनल इज ऑल अबाउट स्टोरीज. सो टेल मी समथिंग अबाउट, कोई मेरा लाइफ का ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा है अब तक का. भाई इतना ट्रैवल करते हो पूरा. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आई थिंक। सबसे बढ़िया चलो एक्सपीरियंसेस एक तब जो होते हैं रेलेवेंट हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस और जो जो या जब मैं शेयर. कॉलेजेस में जाता हूँ इवेंट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि मेरे सामने 1,000 से भी ज्यादा बच्चे होते हैं जो कॉलेज में होते हैं। एंड मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ, उनसे समझ रहा होता हूँ उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड एक एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर एनआईटी अगरतला में मैं गया था, एंड वहां पर मैं बात कर रहा था, और बात करते करते सामने एक लड़का था एंड उसने मुझे बोला कि ही वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तब उसने मेरी कोई वीडियो देखी एंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ।
एंड एक और लड़की ने आके मेरे को बोला कि मैंने आपकी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे वीडियो देखी और मुझे मेरी पहली लाइफ की नौकरी मिल गई आफ्टर लर्निंग फ्रॉम योर वीडियो एंड एग्जीक्यूटिंग। एंड आज आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी, मेरे पहला महीना था काम करके, एंड आई बॉट माई फर्स्ट मैकबुक फ्रॉम दैट। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज मैं सुनता हूँ लोगों से, एंड उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ घर में रूम में बैठ करके कंटेंट बना रहा हूँ, तो उससे पूरी दुनिया में लोगों को इम्पैक्ट मिल रहा है। मैं अभी सिलिकॉन वैली गया था अगेन, तो वहां पर मैं बैठ करके खाना खा रहा था इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट में। तो वहां पर एक एक आके बोलते हैं कि मैंने आपकी अश्नीर ग्रोवर के साथ पॉडकास्ट देखा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंडिया में बैठ के मैंने पॉडकास्ट पब्लिश किया, एंड वो पॉडकास्ट लोग सैन फ्रांसिस्को तक जा रहा है, वो वहां पे लोग देख रहे हैं। एंड आई थिंक ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि अच्छा, मुझे आगे और भी बहुत कुछ करना है, देयर सो मच मोर कैन बी डन। एंड जो इम्पैक्ट मेरी वीडियोस यस। ने क्रिएट किया है लोगों के लिए, दैट्स रियली जस्ट फिल्स मी अप विद ग्रेटिट्यूड। यस, मुझे यही चीज आपको बतानी थी। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो मेरा उसमें था भी नहीं। मुझे कल एक स्टूडेंट ने बोला कि आई हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनके साथ मैं बात करती हूँ कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फर्दर। तो मैंने बताया कि मेरी नेक्स्ट इंटरव्यू ईशान शर्मा के साथ है। तो उसने कहा मैम, भैया को हमारा थैंक यू बोला, आई फॉलो देम एंड उनकी वजह से मेरे को लाइफ में बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो आई वाज सो हैप्पी टू नो कि पीपल are following you and they are getting inspired and you are becoming a change maker, बच्चों को एक कोई दिशा दिखाने वाला जो अपनी टाइप का हो, उससे ज्यादा इंस्पायर होते हैं, रादर देन रीडिंग अबाउट लीडर्स दे हैव नेवर नोन। सो रियल लाइफ हीरोज का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो कर रहा है। एंड यू टॉक अ लॉट अबाउट योर सक्सेस ऑल्सो। एक बच्चों को ये भी मुझे लगता है आपको मैसेज बताना, इसलिए मैंने पूछा था कि लाइफ में कुछ, क्योंकि with God's grace आपके parents were on your side, you were an intelligent child and things kept happening, but there can be people who face a lot of rejections, उनकी लाइफ इतनी स्मूथ सेलिंग शायद ना हो। तो उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कि अगर रिजेक्शन हो भी जाए या पहली जो आपका पहला प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल ना हो, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? एक अपना कीमती सा मैसेज पेरेंट्स और बच्चों के लिए अलग अलग, जो अभी करियर बना रहे हैं या अभी सोच रहे हैं बनाने की, उनको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। सो हाउ विल यू लाइक टू गाइड देम मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी विद बिल्कुल भी योर मुझे क्या स्टोरी? करना है, बट मेरे पास एक चीज क्लियर थी कि मुझे सबसे ज्यादा चीजों को ट्राई करना है। एंड मुझे पता था कि सारी चीजें नहीं चलने वाली, बट एक चीज चलेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी द वन दैट विल गेट मी टू वेयर आई वांट टू गो इन लाइफ। तो जब मैंने शुरू किया था, तो माय फर्स्ट थिंग वाज अ पॉडकास्ट मेंटरशिप कंपनी दैट आई स्टार्टेड कॉल्ड पॉड इन्फिनिटी। दिस इज 2020 के टाइम पर, एंड दैट कंपनी डिड नॉट वर्क। आई डिड नॉट नो हाउ टू रन अ कंपनी, तो इट जस्ट डिड नॉट वर्क एट ऑल। बट फिर मैंने 6 महीने एक इंटर्नशिप में काम किया फॉर फ्री, एक कंपनी के अंडर, एक फाउंडर के अंडर। एंड उससे अगेन मुझे पैसे नहीं मिले, बट मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड वो सारी जो लर्निंग्स थी मेरी, उन सब ने मुझे हेल्प किया टू स्टार्ट दिस कंपनी विच आई रन टुडे। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज, लर्निंग के पीछे आप जितना भागोगे ना, आपको उतने ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे और आप आगे बेटर चॉइसेस ले सकते हो इन लाइफ। तो अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है स्टार्टिंग में, अगर आप कोई चीज ट्राई करते हो तो कुछ भी नहीं होता है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दैट आपके पास बहुत सारा टाइम है, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट एसेट। लाइक अगर मेरे पास अगर एक चांस होता कि मैं वापस 18 साल का हो जाऊं, तो मैं एकदम से अपना सब कुछ खो देता अभी की अभी, राइट? एंड आई बी लाइक कि I'd love to be 18 year old again, but I'm 23 right now and I feel old when I meet these 17, 18-year-old kids. But the point is that I always keep my learnings and I focus on how can I do things better every day. Thank you so much for your time, for sharing all your stories. I'm sure our students are going to get inspired और पेरेंट्स को भी बहुत हौसला मिलेगा कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ देने से हमारे ईशान शर्मा जैसे बच्चे मिल सकते। So we can all get inspired. Thank you so much, Ishan, and all the best Thank for you your so future much. endeavors. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me on this platform. I think this was amazing talking to you. I hope this was valuable to everyone who's watching.